سرتاج، دسترخوان آپ کی نگاہ کرم کا امیدوار ہے۔ سیدہ بیگم، جب ہم مجبوروں اور بے گناہوں پر ظلم و ستم کی داستانیں سنتے ہیں تو قہر و جلال ہمارے رحم و کرم کو پیچھے ہٹا کر سامنے آ جاتا ہے، اور ہم ظالموں کے برپا کیے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ ہمیں پیاس لگتی ہے نہ بھوک ستاتی ہے۔ یا اللہ خیر، یہ منحوس خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کارنوالیس کے آنے کے بعد سے بنگال، کرناٹک اور ملبار میں ہندوستانیوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ آخر یہ ظلم و ستم کا بازار کیوں گرم کیا گیا ہے؟ تاکہ انگریزوں کے ہتھیاروں کے کارخانوں کے لیے سستے مزدور مل سکے، ان کی فوجوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سپاہی حاصل ہو سکے۔ مگر یہ تیاریاں کس کے خلاف ہو رہی ہیں؟ ہمارے خلاف، صرف ہمارے خلاف، مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم کسی وقت بھی انگریزوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تکلیف تو اس بات کی ہے، یہ سب ہم ہی نہیں دوسرے بھی جانتے ہیں، لیکن کسی کو اپنے بھائیوں سے ہمدردی نہیں۔ انسانوں کی بھلائی کی عزت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان حکمرانوں کی خود غرضی اور انگریزوں کے خوف نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ انہیں آنے والا وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ دور اندیشی سے کام نہ لینے والوں کو ایک دن پچھتانا پڑتا ہے۔ یقیناً فرنگی ہندوستان کی دولت اور طاقت ہندوستان کی ہی بربادی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی اپنی ہی تباہی میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کم بخت فرنگی انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں۔ ان کا جواب تلواروں سے دیا جا سکتا ہے، مگر غیروں کی طاقت نہیں، اپنوں کی کمزوری غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ ہمیں ان زنجیروں کو ہندوستان کی گردن میں پڑنے سے پہلے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ Thank you, James. Yes. سر، میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی اقدام کر ڈالیں۔ جنرل میڈوز کی بات صحیح ہے، وقت نے بھی ان کی گواہی دی ہے۔ ہفتوں سے ہم ان رپورٹس کی جانچ پڑتال میں اپنی رنگین راتیں کالی کر رہے ہیں جو ہم تک آ رہی ہیں۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے گزشتہ 4 سال بیکار نہیں گئے۔ ہمارے تمام گودام چھلک رہے ہیں، وہ اناج کی کھتیاں ہوں یا اسلحہ خانے۔ جنگ کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، صرف ٹیپو سلطان کی طرف پیش قدمی کے حکم کا انتظار ہے۔ اس وقت ہم اپنی امید اور ٹیپو سلطان کے خیال سے بھی زیادہ تیاری کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہتر بھی ہے۔
Good. हालात हमारे हक में हैं। टीपू सुल्तान के जनरल्स उनसे बददिल होते जा रहे हैं। अगर हम उनकी तरफ ध्यान दें तो टीपू सुल्तान बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। ये ताज्जुब की बात है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? टीपू सुल्तान खुद अपने अवाम और अपने साथियों से दूर हो गए हैं। बिल्कुल गलत। टीपू सुल्तान अपने आवाम से कभी दूर नहीं हो सकते। जेंटलमैन, जनरल मेडोज का मतलब है टीपू सुल्तान के कई ताकतवर साथी, मालगुजार, राजा, जागीरदार और कई ताजिर उनके खिलाफ हो गए हैं। मजदूरों, किसानों या सब्जी तरकारी बेचने वालों की क्या गिनती? दुआएं और नेक तमन्नाएं मैदान जंग में हथियारों की जगह नहीं ले सकते। यही उनकी भूल है कि उन्होंने तलवार के धनी और गांठ के पोड़े लोगों को ठुकरा कर भूखमरों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है जो उनके लिए नहीं, हमारे काम आने वाली है। टीपू सुल्तान अपने समाज के बस तबके के लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। ये बात ऊंचे तबके वाले पसंद नहीं करते। हमारा काम इन ऊंचे लोगों को और ऊंचा कर देना है। गवर्नर जनरल की तजवीज लाजवाब है। यस इंडीड। हमें टीपू सुल्तान की हर अच्छाई को बुराई बना देना है। And why only him? हिंदुस्तान के हर हुकूमरान के किरदार को बिगाड़कर पब्लिक के सामने पेश करना है। इस मुल्क की हिस्ट्री अंग्रेजों को लिखना है। अपनी गर्ज, अपने मकसद और अपने सियासत के कलम से। क्या गवर्नर जनरल मजाक फरमा रहे हैं? वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस मजाक में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। अब सिर्फ नाइज़ाम और पेशवा से मुआहदा करना बाकी है। नेक्स्ट वीक हम नाइज़ाम से मुलाकात कर रहे हैं। सर, जब तक निजाम को अपना फायदा नजर नहीं आएगा तब तक वो मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। जनरल ड्रेक, हमें टुकड़ा डालकर मुंह बंद करना आता है। टीपू सुल्तान से छीने हुए इलाके का 1/3 हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। अब कलम नाइज़ाम के हाथ में और उसकी हरकत हमारे हाथ में होगी। एक बेएतबार और ठुलमुल यकीन पर इतनी मेहरबानी? नाइज़ाम हमारे दोस्त है और दोस्तों का हिसाब दिल में रखा जाता है। जब भी चाहा चुका दिया। लेकिन टीपू सुल्तान से जंग के लिए एक माकूल बहाना चाहिए। क्या इसकी जरूरत है? यस, हमारा उनके साथ मुआहदा है। But let him abide by the treaty. Don't worry. हम अपने हर मकसद को सियासत की चादर से ढांककर पूरा करने के आदी हैं। हम ये अफवाह फैला सकते हैं कि टीपू सुल्तान हमारे दोस्त निजाम पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। That's right. और उन्होंने हमसे मदद भी तलब की है। गुज़िश्ता जंग में कामयाबी के बाद निजाम से छीने हुए सारे इलाके टीपू सुल्तान ने वापस कर दिए थे। ये बात इस अफवाह को हकीकत नहीं बनने देगी। Of course. झूठ और सांप के पांव नहीं होते, लेकिन रफ्तार भी कम नहीं होती। हर सांप जहरीला नहीं होता और हर झूठ सच का हम शक्ल नहीं होता। इस बलि के लिए कोई छोटे कद का बकरा ढूंढो।
ढूंढ लिया। कौन है वो? कैप्टन गो। ठीक है, एक होशियार और एक्सपीरियंस्ड आदमी को महाराजा ऑफ ट्रावनकोर के पास खुफिया तौर पर भेजो। उसे कहो कि वो टीपू सुल्तान के खिलाफ हमसे मदद मांगे। अगर वो इनकार कर दे तो उसे धमकी दो कि वो हमारे हमले के लिए तैयार रहे। जनरल मेडिस, सर। तुम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल काउंट कॉनवे को इस मामले से अलग रख सकते हो। उनके जमीर का मुंह मांगी कीमत पर सौदा भी कर सकते हो। पुणे के ब्रिटिश एजेंट को लिखो कि नाना फडणवीस को राजी किया जाए। यही काम हर कीमत पर होना चाहिए और हमारा हैदराबाद जाने का बंदोबस्त करो। थैंक यू जेंटलमैन। बखिदमत आली जनाब लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस बहादुर, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जनाब आली, हुजूर पुरनूर शजीउल मुल्क निज़ाम सानी आसिफ जाह निज़ाम अली बहादुर अपनी रियाया के साथ हैदराबाद में आपकी तशरीफ़ आवरी पर अपनी दिली मसरत का इजहार फरमाते हैं। हुजूर अनवर, आपकी ज़ात पुरसिफ़ात जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहायत अहम है, वहीं हुकूमत हैदराबाद के लिए भी आपकी सरपरस्ती काबिल कद्र है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह आज तक हुकूमत हैदराबाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्ती पर फ़ख्र करती रही है, उसी तरह आइंदा भी कंपनी की दोस्ती का दम भरती रहेगी और इसे अपनी खुशकिस्मती तस्वूर करेगी। हुकूमत हैदराबाद हमेशा की तरह बर वक्त ज़रूरत आइंदा भी कंपनी की माली, फौजी, सियासी और अखलाकी इमदाद करती रहेगी। आज कंपनी और हुकूमत हैदराबाद के दरमियान होने वाला ये मुआहदा हिंदुस्तान की तारीख को नया मोड़ देने वाला मुआहदा है। जनाब लाट साहब की तवील ज़िंदगी, कामयाबी, हुकूमत हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी की पायदार दोस्ती के लिए दुआ पर यह पुरखलूस कलाम ख़त्म किया जाता है। रेजिडेंट बहादुर जनाब कैप्टन कीनवे साहब गवर्नर जनरल बहादुर के नुमाइंदे की हैसियत से दोस्ती के इस मुआहदे पर दस्तखत करके हमें शुक्रिया का मौका अता फरमाएं। योर एक्सलेंसी, दोस्ताना मुआहदा मुबारक है। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। Congratulations, congratulations, congratulations. मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। हमने हमेशा अंग्रेजों की दोस्ती को सबकी दोस्ती पर मुकद्दम रखा है। उनके दोस्त को अपना दोस्त और दुश्मन को अपना दुश्मन समझा है। बड़े आदमी हमेशा अपनी जबान के पाबंद रहते हैं। हमें आपकी दोस्ती पर फख्र है। आपकी दोस्ती के वजह से हम हिंदुस्तान में तरक्की कर रहे हैं और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाते रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें आप लोगों की सख्त जरूरत है। बेशक बेशक, हम हिंदुस्तान के काम आ सकें तो ये हमारी खुशनसीबी है। हरिपन जी, जी क्या आपको निजाम की तरफ से अंग्रेजों के बारे में ये सारी खबरें मिली हैं? जी नहीं, एक सिपा सालार की हैसियत से मेरा यह फर्ज है कि मैं दोस्त दुश्मन
सबकी फौजी तैयारियों की सूचना हासिल करता रहूं। ये तो समझदारी का काम है। बैठिए। जी। हरिपन जी, अगर हम जंग में तटस्थ रहें तो बेहतर रहेगा। इस जंग से अलग रहने में हमारी साख दोनों तरफ खराब हो जाएगी, क्योंकि इस जंग में जो भी जीतेगा वो हम पर चढ़ दौड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों की बात मान लेना ही हमारे लिए ठीक है। अगर अंग्रेज टीपू सुल्तान के हाथों पिट गए तो? यह संभव नहीं नाना साहब। हम तीन एक तरफ होंगे तो वो अकेले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और भगवान ना करे अगर वो जीत भी गए तो उनकी हालत तो जख्मी शेर की तरह होगी जो अपने घाव भी नहीं चाट सकता हो। हरिपन जी, टीपू सुल्तान हमारे दुश्मन हैं, सही है, लेकिन वे हिंदुस्तान के सच्चे सपूत हैं। उनके खिलाफ मैं किसी भी विदेशी ताकत से हाथ नहीं मिला सकता। तो क्या आप टीपू सुल्तान से हाथ मिलाकर अंग्रेजों से मुकाबला करना चाहते हैं? मैं ये भी नहीं चाहता। तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं किसी का साथ देना नहीं चाहता, ना टीपू सुल्तान का, ना ही अंग्रेजों का। लेकिन क्यों? अगर अंग्रेज जीत जाते हैं तो वे और भी ताकतवर हो जाएंगे। क्या हम उन्हें जिताकर अपने सामने एक ऐसा ताकतवर दुश्मन खड़ा कर लें जो किसी भी दिन खुद हमें ही मिटा डाले? वे लोग नादान होते हैं हरिपन जी, जो एक दुश्मन को मिटाने के लिए दूसरे दुश्मन का साथ देते हैं। इस जगह आप एक बात भूल रहे हैं नाना साहब। ये जंग जीतकर सिर्फ अंग्रेजों की ही ताकत नहीं बढ़ेगी, हमारी भी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि फतह के बाद माले गनीमत, इलाका और तावाने जंग में हम बराबर के शरीक होंगे। अलबत्ता अगर अंग्रेज बगैर हमारे जीत गए तो वो अकेले हर चीज के मालिक होंगे। वो बहुत ताकतवर और हम उनके सामने बहुत कमजोर हो जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ा लेनी चाहिए। मैं कहता हूं देर न कीजिए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। अंग्रेजों का गुमाश्ता चार्ल्स मैलट बेसब्री से हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है। हमें फैसले में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कल तक इस बात का फैसला हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कहा है, निर्णय के समय उसे ध्यान में रखिएगा। मैं आपके एक एक शब्द पर विचार करके उसके बाद ही फैसला करूंगा। नमस्कार हरिपन जी। नमस्कार। नमस्कार तुकोजीराव। नमस्कार। पधारी। तो आपने क्या निर्णय लिया? थोडो जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फौजी मुआहदे के दस्तावेज आपकी रजा और हस्ताक्षर के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो कंपनी के गुमाश्ते मिस्टर चार्ल्स वॉलिस को बुला लिया जाए।
तुकोजी राव, हम तुम्हारी भावनाओं की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे विचार आपके साथ सहमत हैं। हमारे सामने आज सिवाय जीत की आशा रखने वाले पक्ष का साथ देने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया है। कौन जीतेगा ये तो बस ईश्वर ही जानता है। आप ठीक कहते हैं तुकोजी राव जी। समय की आंखें देखते हुए मराठा कौम की सलामती के लिए आज मैं अपने उसूलों की बलि दे रहा हूं। शायद ये जरूरी भी है। क्षमा कीजिए नाना साहब, मेरे ख्याल में तो ये वही बात हुई कि आज अपनी जान बचाने के लिए हम मगरमच्छ के हवाले किसी दूसरे को कर दें, ताकि वो हमें आज नहीं कल निकल ले। भगवान करे ऐसा न हो। कंपनी के गुमाश्ते को अंदर बुला लो। कलम। वल नाना साहब, आप बहुत समझदार इंसान हैं। मैं आपकी सियासी सूझबूझ की दाद देता हूं। गवर्नर जनरल बहादुर का ख्याल है। बस। आप अपने गवर्नर जनरल बहादुर के विचार इनको सुना दीजिए, इनसे मुझे पता चल जाएगा। मेरे हाथ में रोशनाई लग गई है। अब मैं आज्ञा चाहता हूं। हमने अपनी तरफ बढ़े हुए अंग्रेजों के जिस हाथ को झटक दिया था, उसे हमारे पड़ोसियों ने थाम लिया। क्यों? किस लिए? इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तानियों के खून का समंदर ठाठे मारे। हिंदुस्तान के बेटे आपस ही में लड़कर खत्म हो जाए और ये अंग्रेज राज करे। ये मुआहिदा सल्तनत खुदादाद के खिलाफ किया गया है। जो तन्हा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्होंने हमारे विरुद्ध संगठन किया है। हम समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते। हमारे खिलाफ अंग्रेजों के साथ मुआहिदा
खुद उनके खिलाफ है। अगर सल्तनत खुदादाद न रही तो उनकी हुकूमतें भी खत्म होकर रहेंगी, या वो तख्त से उतार दिए जाएंगे या अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहेंगे। अंग्रेज उन्हें उठाएंगे तो उठेंगे, बिठाएंगे तो बैठेंगे। निजाम साहब की तो क्या कहूं, लेकिन समझदार और होशियार नाना फडणवीस से ये उम्मीद नहीं थी। आखिर ये लोग अंग्रेजों की चालें समझते क्यों नहीं? जिस तरह आंधी के जोर के सामने चिराग बुझ जाते हैं, उसी तरह हवस, लालच और खुदगर्जी के तूफान के सामने अक्ल बेकार हो जाती है। दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त समझने वाले हमेशा घाटे में रहते हैं। कॉर्नवालिस की दस्तावेज की एक एक नकल हमारे पड़ोसियों को भेज दी जाए, जिसमें उस अंग्रेज ने उनके इलाकों को फतह करके बांट लेने की दावत हमें दी थी, और उसके साथ हमारा यह पैगाम भी कि अभी वक्त है, अपनी भूल का इलाज कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए, सलामती के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का अज़्म कर चुके हैं। एक सल्तनत खुदादाद तो क्या, 10 सल्तनतें भी हमारे पास हों तो हम हिंदुस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। रियासत मैसूर का एक एक फर्द सुल्तान के साथ है। सल्तनत खुदादाद पर बुरी नजर डालने वाले शायद ये नहीं जानते कि ये लोहे के चने हैं और उन्हें चबाना आसान नहीं। पुरनया साहब, जब तक कुल्हाड़ी को लकड़ी का दस्ता न मिल जाए, वो मामूली से मामूली दरख्त की जड़ें भी नहीं काट सकती। अपनों की गद्दारी गैरों की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बहादुर अपने लिबास को अपना कफन समझते हैं, मौत को शरीक जिंदगी जानते हैं, जनाजे को फूलों की सेक समझते हैं। हमसे टकराने की वो कोशिश करे जो हमें मारने से ज्यादा खुद मरने के लिए तैयार हो। थैंक यू। हमारी तरफ से गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनके तोहफों के लिए शुक्रिया अदा फरमाइए, और हम पांडिचेरी की जमीन पर उनके कदमों का इंतजार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। टीपू सुल्तान से हमारा कोई तहरीरी मुआहदा तो नहीं है, लेकिन फ्रांसीसियों की जुबान से निकली बात पत्थर की लकीर से कम नहीं होती। तो अगर टीपू सुल्तान हमसे मदद मांगे तो क्या हम इनकार कर सकते हैं? हरगिज नहीं। योर एक्सेलेंसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों गोरी कौमें हैं, पड़ोसी हैं, दूसरी कौमों पर हुकूमत करने का हक रखती हैं। हमें हिंदुस्तान को आपस में बांट लेना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे सामने कुछ दुश्वारियां हैं। इस दुनिया में कोई भी दुश्वारी ऐसी नहीं जिसे आसान न किया जा सकता हो। लेकिन बगैर सोचे समझे कोई फैसला हम किस तरह कर सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है मेरी रवानगी के वक्त तक आप जरूर कोई फैसला कर लेंगे। गवर्नर जनरल सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप टीपू सुल्तान का साथ न दें। That's all. We will think about it. इनके आराम का खास ख्याल रखा जाए। थैंक यू। डेफिसन, कॉर्नवालिस की मेहरबानियां बढ़ती जा रही हैं। एक महीने में तोहफों की ये तीसरी खेप आई है, और पांडिचेरी के दौरे की तमन्ना की गई है। यह सब बेमतलब नहीं है। यस, जनरल मेडोज की बातों से मालूम होता है जल्दी कुछ होने वाला है। यह आप क्या सोच रहे हैं? हर मुआहदे की कोई वजह होती है, एक मुद्दत होती है, और वो किसी खास हालात के पेश नजर किया जाता है। बेशक हालात के साथ मुआहदे की हैसियत भी बदल सकती है।
पुरानी चीजों का रंग फीका भी पड़ जाया करता है। सर, अगर हमने टीपू सुल्तान की दोस्ती से मुंह मोड़ लिया तो क्या हिंदुस्तान में फ्रांस की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा? यह क्या शराफत के खिलाफ नहीं है? सियासत और शराफत डोंट गो टुगेदर। दोनों एक दूसरे की सौत हैं। ये कंधे से कंधा मिलाकर 2 कदम भी नहीं चल सकते। हार जाने वाली जंग लड़ने वाले बेवकूफ कहे जाते हैं, और मैं ये घाटे का सौदा करने को तैयार नहीं। तो हमें खुलकर अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। नो नो, वी हैव टू प्ले डबल गेम। डबल गेम, दोहरा किरदार अदा करना है। यानी अंग्रेज हमारे पुराने दुश्मन और नए दोस्त, टीपू सुल्तान पुराने दोस्त और नए दुश्मन। मेरे नजदीक ये अपने जमीर का गला घोंट देने वाली बात है। डेविसन, अंग्रेज हिंदुस्तान में सियासी दौड़ में हमसे आगे निकल चुके हैं। अब हम उनका पीछा नहीं कर सकते। जमीर को इबादत करके और खुदा से माफी मांगकर जिंदा किया जा सकता है, लेकिन माली नुकसान आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड? सुल्तान जुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। गरीबों पर रहम करते हैं, किसी को सताते नहीं। जब तक कोई उन्हें छेड़े नहीं वो हमला नहीं करते। बिल्कुल शेर का मिजाज रखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जनरल मेडोज। तुम जा सकते हो। मेडोज, चिड़िया फटकी में आई या दाना खा के उड़ गई? पहले तो उसने बहुत पर फड़फड़ाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके पर बांध दिए। वेरी गुड, प्लीज प्रोसीड। गैर जानिबदारी का पक्का वादा लेकर आया हूं, और आपके लिए पौंडीचेरी आने की दावत भी। अब से कुछ दिन पहले टीपू सुल्तान के भेजे हुए डेलीगेशन के किंग ऑफ फ्रांस की मुलाकात के बारे में कोई बात मालूम हुई? इसके बारे में हिज एक्सेलेंसी ने आपके नाम खत दिया है। जेम्स, क्या लिखा है? शहनशाह फ्रांस फरमाते हैं कि टीपू सुल्तान के डेलीगेशन से मुलाकात को कोई अहमियत न दी जाए। हुकूमत फ्रांस और सल्तनत खुदादाद के दरमियान किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं किया गया है, न फौजी न तिजारती। टीपू सुल्तान के डेलीगेशन को फ्रांस से फौरन वापस होना पड़ा, क्योंकि इस वक्त वहां इनकलाबियों का बोलबाला है और शाही खानदान हर तरफ से खतरों से घिरा हुआ है। फ्रांस के हालात अभी तक पुरसुकून नहीं है, इसलिए टीपू सुल्तान के साथ किसी किस्म की गर्मजोशी की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती। हमने फ्रांस के कौमी वकार, शाही कानून और अवामी वफादात के पेश नजर ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी हुक्मरानों के तमाम इख्तलाफात से बिल्कुल अलग थलग रहने का फैसला किया है। Remember, Meadows, जो बातों और लातों से रास्ता न छोड़े, उसे सोने चांदी के ढेर में दफन करो और ऊपर से गुजर जाओ। Gentlemen, हमने सुना है सल्तनत खुदादाद में शराब पर पाबंदी है। बहुत सख्त। सुल्तान ने शराब की सभी दुकानें बंद करवा दी है। ओह, इससे तो हुकूमत की अच्छी खासी आमदनी बंद हो गई होगी। सुल्तान कहते हैं
हराम की चीजों का मंसूल भी हराम होता है। अच्छा, तो तुम लोगों को कहां से मिलती है? चोरी छिपे रियासत के बाहर से मंगवा लेते हैं। कोई पूछगछ नहीं होती? कभी पता चल जाता है तो जुर्माना भरना पड़ता है। तुम ही लोगों को या सबको? सबको, लेकिन मुसलमानों पे बुरी तरह कोड़े भी मारे जाते हैं। तुम लोग जहां रहा करो वहां के कानून का एहतराम करो। आइंदा ख्याल रहेगा। एक बात का ख्याल रखना, अगर अंग्रेज और सुल्तान में जंग हो जाए तो तुम लोग उसमें शरीक न होना। फ्रांस और सुल्तान के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा नहीं है। तुम लोग सिर्फ उनकी फौज की ट्रेनिंग के लिए मुलाजिम हो, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। हमें पेरिस से यही हुक्म मिला है। हमारे लिए इस बात का ऐलान मुनासिब नहीं। ठीक है। एक बात और, मैं तुम लोगों के पास नहीं आया हूं, बल्कि सुल्तान से मुलाकात के लिए आया हूं। तुम लोगों ने मुझे सिर्फ डिनर पे बुलाया है। अंडरस्टैंड? सर। फरमा रवाय सल्तनत खुदादाद शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। गवर्नर जनरल ऑफ पांडिचेरी की हैसियत से मैं सुल्तान की खिदमत में नेक ख्वाहिशें और मुबारक तमन्नाएं पेश करता हूं। हमारी तरफ से आप हुकूमत फ्रांस की नेक ख्वाहिशों के लिए शुक्रिया अदा फरमाए। इधर चंद रोज से कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिन्हें सुनकर सुल्तान के फ्रांसीसी दोस्त परेशान हैं, और सुल्तान को भी अंग्रेजों की जबरदस्त फौजी तैयारी की इत्तला तो जरूर हो चुकी होगी। हमें एक एक बात की खबर है, और हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेज जनरल हमारे दोस्तों के यहां बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंच रहे हैं। हमारी निगाह हालात पर, कान वक्त की आहट पर, और हाथ हमेशा तलवार के दस्ते पर रहता है। हमें अपने दोस्तों की शराफत पर यकीन है। इस सूरत में सुल्तान अपने दोस्तों से क्या चाहते हैं? फ्रांसीसी से अपनी दोस्ती का सबूत पेश करने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्हें सिर्फ सुल्तान के हुक्म का इंतजार है। हमें आपके खुलूस और वफादारी पर पूरा एतमाद है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दोस्त हमारे दुश्मनों की लगाई हुई आग को अपने दामन की हवा ना दें। हमें खुदा पर यकीन है, अपने मजबूत इरादे और कुव्वत बाजू पर भरोसा है। हम अपनी मदद आप करने पर ईमान रखते हैं। सुल्तान का अज़्म और हौसला तो दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन दोस्तों का भी तो कुछ फर्ज होता है। हम एक गैर मुल्की ताकत को तोड़ने के लिए दूसरी गैर मुल्की ताकत का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते। हम आपसे उतनी ही मदद चाहते हैं जो आप लोग हमारी फौज की तरबियत करके हमें दे रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि किसी भी अफवाह या वजह से हम अपने फ्रांसीसी दोस्तों से नाराज नहीं हैं, बल्कि पहले ही की तरह हम अपने दिल में उनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। योर मैजेस्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी सुल्तान को अगर हमारी थोड़ी सी ताकत की जब भी जरूरत हो तलब फरमा सकते हैं। हमें अपने तमाम दोस्तों से यही उम्मीद है, लेकिन इसके साथ यह भी यकीन है इंशाअल्लाह इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। आप हिंदुस्तान से फ्रांस तक किसी भी यूरोपीय कौम के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे।